ایسی اور بہت سی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ مجاہد حسین، یوٹیوب چینل مجاہد حسین اسٹوڈیو سے آپ کے لیے ہر روز ایک نئی طرح کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں۔ اس بار آپ کو میں اس بندے کی کہانی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے اپنی ہی زندگی نہیں، اپنے بچوں کی بھی زندگی محنت کر کے اور اس کمی کے باوجود اپنی ہمت نہیں ہاری اور اپنی محنت سے اپنی زندگی کو سنوارا اور اپنے بچوں کی زندگی سے سنوارا۔ میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ان سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، آپ کا نام؟ محمد لکھو۔ آپ یہاں یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ کپڑے کی سلائی کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ٹانگوں کو کوئی مسئلہ ہے؟ یہ بچپن سے پولیو ہوا تھا، دونوں ٹانگیں معذور ہوتی ہیں۔ تو یہ ٹانگیں معذور ہونے کی وجہ سے آپ کو بچپن میں کوئی پرابلم آئی یا آپ کو کیا پیش آئی جس کا آپ نے سامنا کیا، اور ماشاءاللہ آپ دکان بنا کر بیٹھے ہیں، آپ نے یہ کس طرح کیا؟ یہ میرے والدین نے مجھ پر بڑی محنت کی اور کئی طرح کے علاج کروائے، کئی مشکل جگہوں سے گزرے اور میری مزدوری ٹھیک نہ ہوئی اور انہوں نے مجھے پرائمری تک پڑھایا اور اس کے بعد یہ مجھے مشین لے کر دی اور میں نے یہ اپنا کام شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے میری شادی کی اور میرا ایک مہربان ماموں تھا، اس نے مجھے رشتہ دے دیا اور اللہ نے مجھے بہت اولاد نیک اور مطلب نرینہ اولاد عطا فرمائی، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ کے کتنی اولاد ہے؟ آپ کے پاس بچے کتنے ہیں؟ بیٹے کتنے اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں جو شادی شدہ ہو چکی ہیں۔ ایک بیٹا رہتا ہے، ابھی انشاءاللہ اس ربیع الاول میں اس کی شادی بھی کرنے کی تیاری ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو آپ نے یہی کیسے سوچا کہ آج کل تو صحیح جو انسان ہے بالکل تندرست ہڈے کٹے ہیں، وہ لوگ سامنے ہاتھ دراز کرنا شروع کرتے تھے، سوال کرتے ہیں کہ مدد مانگتے ہیں، تو آپ نے اس کمی کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود آپ نے یہ ہمت کی اور آپ نے یہاں تک اپنا سفر کیسے طے کیا؟ آپ اس کام سے خوش ہیں اور آپ مطمئن ہیں اپنی زندگی سے؟ جی میں بہت مطمئن ہوں۔ تقریباً سن 1990 سے ہمارے گاؤں میں زکوٰۃ عشر کا نظام چلا جی اور انہوں نے میرے پوچھے بغیر ہی میرا نام ادھر لکھ زکوٰۃ عشر میں۔ جی زکوٰۃ عشر کا جو چیئرمین تھا مولوی بشیر احمد، وہ میرے پاس آیا، بھئی آپ کے رقم آ چکی ہے 40 روپے، اس زمانے میں سن 90 میں 40 روپے، تو آپ ادھر ڈیرے پر آ کر لے لیں۔ میں نے اس کو کہا میاں جی میں وہ نہیں لوں گا۔ کیا بات؟ کیوں بھی تو کیوں نہیں لے گا؟ میں نے کہا مجھے اللہ دال روٹی دے رہا ہے، آپ کسی اور کو دیں جس کے پاس نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ میں یار وہ ذمہ دار کی عورتیں، وہ ذمہ دار مرد لے رہے ہیں اور آپ ایک غریب ہو کر انکار کر رہے ہیں۔ میں کہ نہیں جی میرا دل نہیں مانتا، باپ میرا وہ 40 روپیہ کسی اور کو دے۔ انہوں نے کہا پھر آپ رجسٹر پر دستخط کریں، انگوٹھا لگائیں کہ انکار۔ مطلب ٹھیک ہے میں لگا دیتا ہوں۔ رجسٹر لائے میرے پاس، میں ادھر نہیں جاؤں اور میں اتنا چل بھی نہیں سکتا۔ وہ میرے پاس رجسٹر لائے اور میں نے اس پر دستخط کر دی کہ میں انکار میں نہیں دینا چاہتا۔ وہ بلکہ اس نے مجھے شاباش دی، کہ یہ پہلا آدمی دیکھا ہے جو آئی ہوئی رقم کو واپس کرتا۔ جی آپ کی اس ہمت کو اور یہ آپ کے اس مرتبے کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اچھے بھلے لوگ، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ جو آج کل گھر بیٹھے زکاتیں لے رہے ہیں، اپنے کاروبار کے ہوتے ہوئے سب چیزیں ہوتے ہوئے زکوٰۃ لے رہے ہیں اور جتنے بھی پیسے آ رہے ہیں بٹور رہے ہیں، اور آپ نے ان کی زبانی خود سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کمی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے کہ اپنی محنت سے سب کچھ بنایا، اپنا گھر بنایا اور اپنی شادی بھی کی، اور اس کے بعد ان کی ہاں اولاد ہوئی، آپ سن چکے ہیں، اور اس اولاد کو پھر پڑھایا اور وہ اولاد کو پڑھا کر ان کو شادیاں کی، اور وہ اب اپنے اپنے گھروں میں علیحدہ گھروں میں موجود ہیں اور اپنی زندگی بہت ہی ہنسی خوشی سے گزار رہے ہیں۔ اور آپ کو اس کے علاوہ انہوں نے
इस गालबन हमने सुना है कि आपने सब गांव के बच्चों को, काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है कुरान पाक, ये सही है? तकरीबन गांव के 40% बच्चों को मैंने कुरान पाक पढ़ाया है और बेलौस पढ़ाया है, 1 रुपया नहीं किसी से लिया। जी, आपको ये बातें सुनकर रश्क आ रहा होगा और आप लोग अपनी हिम्मत जुटाएं, जिस तरह मोहम्मद यकूब साहब ने अपनी ज़िंदगी को संवारा है अल्लाह के ताला की मदद से, और बच्चों को तालीम दी, खुद भी तालीम हासिल की और हिम्मत नहीं आ रही। इनकी दोनों टांगें जो मजूर है, बिल्कुल चल नहीं सकते, अपने हाथों के बलबूते पर चलते हैं और 5 वक्त के नमाजी हैं। इनका हर वक्त, ये आप देख रहे हैं, इनके पास लोटा मौजूद पड़ा होता है और इससे यहीं वज़ू करते हैं। और इनका मुसल्ला जो है, ये मैं आपको बना कर नहीं दिखा रहा हूँ, फेक वीडियो नहीं है, ये मुसल्ला पड़ा हुआ है और इस पे ये अपने 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। और इसके अलावा आपने ये काम, अपना काम कितने लोगों को सिखाया? आपके कितने शागिर्द हैं, आपको कोई याद होगा? 15 शागिर्द। माशाल्लाह, 15 शागिर्द, 15 लोगों की और भी ज़िंदगी को संवारा है, उनको रोज़गार कमाने के लिए उनको संवारा है। अच्छे भले, जिस तरह के अभी आप कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये लड़का, ये भी शागिर्द है, ये किसी का बच्चा है और इनसे ये सीख रहा है और अपनी रोटी रोज़ी का इंतज़ाम कर रहा है। तो आप ये कितनी उम्र में थे जब आपने ये काम शुरू किया था? मेरी पैदाइश है सन 1960 और ये काम मैंने 80-90 की दहाई में शुरू किया। गालबन आपको 21 और तकरीबन 33 साल हो गए, तकरीबन 35 साल हो गए, 34-35 साल ये काम करते हुए। तो आपकी ये नज़र में कोई ऐसा, ये काम बहुत बारीकी का होता है, नज़र का मसला होता है, तो आपकी नज़र में कोई ऐसा मसला नहीं आया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो? पहले नज़दीक की नज़र कुछ कमज़ोर हुई थी जी, और बाद में खुदा का शुक्र है कि वो ऐनक 1.5 नंबर ऐनक लगी थी, अब वो भी उतर चुकी है। मैं ऐनक के बगैर माशाल्लाह काम कर रहा हूँ। जी, ये यकूब साहब की जो ये मेहनत जो है ना, और ये बच्चों को तालीम देना, अल्लाह ताला का कुरान पाक पढ़ाना, उसकी बरकत से इनकी नज़र जो वीक थी, वो लोगों की ज़्यादा कमज़ोर होती जाती उम्र के साथ, इनकी नज़र वापस आई है और ये अल्लाह ताला के उस नूर का मुआज़ा है कि इनके साथ जो हुआ है। और उसके बाद आपको कहीं अगर रिश्तेदारों में जाना होता है, तो कहीं शादी में जाना होता है, तो कहीं आप जाते हैं तो किस तरह जाते हैं? तो आपको प्रॉब्लम तो होती होगी? प्रॉब्लम तो होती है मुझे, ये मेरे बेटे या दूसरे आसपास वाले किसी न किसी सवारी पर ले जाते हैं और मैं जाता हूँ अपनी बिरादरी के हर मतलब अच्छे बुरे पर जाता हूँ, मुझे ले जाते हैं, अपने बेटे ले जाते हैं। तो आपकी शरीक हयात जो है वो जिंदा है या दुनिया से चली गई? नहीं, वो बहुत हो चुकी है। कितने साल हुए? तकरीबन 2 साल हो चुके। तो पहले आप, जब आपकी शरीक हयात आपके पास मौजूद थी, आप जब वो बहुत हो चुकी तो आपको नजर आया कि आपके बेटे और बेटियाँ या आपकी बहू आपका ख्याल रखती हैं? मेरे बेटे बेटियाँ और बहू माशाल्लाह बहुत फर्माबरदार हैं, कोई उनमें ऐसा डिफेक्ट नहीं है। मैं जो कहता हूँ वो करते हैं और वो जो कहते हैं मैं करता हूँ। बहुत सलूक है, अल्लाह का लाख जी नाज़रीन, ये तो इंशाल्लाह होना था, क्योंकि जहाँ पे अल्लाह का नूर तकसीम किया जाता है, यानी कि जब कुरान पाक की तालीम दी जाती है, बच्चों को बेलौस पढ़ाया जाता है, कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली उन्होंने इस कमज़ोरी के बावजूद, और कई लोगों को ये सिखाया है, अपना हुनर दिया है और वो अपना दुकानदारी और अपने ये दर्जी का काम कर रहे हैं। और इनको आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि ये आपको किस तरह चलते हैं, अपने मुसल्ले तक आके दिखाएंगे आपको कि वज़ू करके ये नमाज किस तरह अदा करते हैं। ये कैंची डालें, आपकी कैंची है, कैमरा बंद, रिकॉर्डिंग में कर दे। हाँ चला, हम चल रहा हूँ। जी, तो मेरे देखने वाले नाजरीन, मेरे चैनल के व्यूवर्स, ये स्टोरी मैंने इनकी मदद के लिए नहीं बनाई है कि आप लोग इनको कोई मदद दें, ये आपकी मदद के तलबगार हैं, नहीं, ये सिर्फ अल्लाह ताला की मदद के तलबगार हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, ये किसी से हेल्प नहीं मांग रहे। ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है, अगर ये अपनी इस माजूरी के बावजूद अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाया, तो आप लोग जो अच्छे भले हैं, हमारे पास टांगे, हाथ, सारे आज़ा मौजूद हैं, हम किसी के सामने क्यों हाथ फैलाएं? हमें हिम्मत करनी चाहिए,
खुद मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए और अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों के सामने हाथ फैलाएं। अपने ज़िंदगी को संवारें और अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवारें, किसी के मुताज मत बने। आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। आपके लिए ये मोहम्मद यकूब साहब आखिरी जो आपको पैगाम देंगे, प्लीज़ उसको गौर से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी को उस सांचे में ढालने की कोशिश कीजिएगा। जी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? एक दफ़ा मैं किसी बीमारी की वजह से सिविल अस्पताल में गया जी। वहाँ मैं हाथों पर चल रहा था और थोड़ी दूर वो मतलब जगह थी जहाँ जाना था। जी जी। तो जब मैं अपने हाथों पर चल रहा था, रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले, वो मुझे रकम पेश करने लगे। ये लोग अभी ये क्या है, तुम्हें दे रहे हैं? नहीं, मैं ये लेने वाला नहीं, मैं देने वाला। माशाअल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। कभी सुभान अल्लाह। चंगे भले आदमी ले लेते हैं, मैं नहीं लेता, किसी और को दे। उधर देखें बहुत लेने वाले, दवाई लेने आए हो, लेकर चला जाऊंगा। ये मेरा पैगाम ये है कि कोई भी मजदूरी हो वो खुदा की तरफ से होती है। अपनी हिम्मत करनी चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। अपनी रोटी खुदा से मांगनी चाहिए, किसी और से तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि ये मुजाहिद मुझे देगा या वो देगा, नहीं, सिर्फ खुदा से मांगना चाहिए। और मेरा यही पैगाम है कि अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत से काम। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। और नाजरीन, मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि ये बहुत अच्छे शायर भी हैं, इस्लामी शायरी करते हैं, नातें लिखते हैं। इनकी बहुत सारी नातें जो कि मशहूर पढ़ी गई हैं और लोग यहाँ के मुकामी नात खां और जो दूर रहने वाले नात खां इनसे नाते मंगवाते हैं। और ये अपने कलाम में किसी कलाम का भी हम चाहेंगे कि ये थोड़े से हमें मुखड़ा सुना दें, तो इनकी मेहरबानी होगी। कोई भी आप अपना जो भी कलाम लिखें उनमें से कोई आप ले सकते हैं, अपनी बुक ले लें। अच्छा, मैं कॉपी निकालता हूँ और आपको चंद शेर सुनाता हूँ। जी जी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। उतनी देर में अपने गांव का नाम बता दीजिए। ये गांव का नाम क्या है आपके? मेरे गांव का नंबर है चक नंबर 367, तहसील जड़ावाला, ज़िला फैसलाबाद, पंजाब का पूरा इलाका? पंजाब का। फैसलाबाद तो फिर पंजाब में ही है ना। जी जी। वो मैंने बहुत सी नातें लिखी है और कापियाँ इस वक्त मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये भाई जो मेरी बहन के बेटे भी हैं माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छे आदमी हैं, मुजाहिद साहब। इन्होंने अचानक मुझे ये कहा कि मैंने आपको कुछ मतलब लिखना है या कुछ आपका पेश करना है। मैं ठीक है, फिर आपकी मेहरबानी, जो भी करें। और इसने कहा भाई आप ये आपका कोई मतलब पेश कर दें, कोई आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो। वही तो मगर नहीं, किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ तंदुरुस्ती चाहिए और खुदा की मदद के बगैर मैं किसी की मदद नहीं चाहता। और कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये अभी आपको कलाम सुनाने से पहले हम बता दें कि ये गांव वाले, इधर गांव वाले भी मौजूद हैं। ये एक गांव वाले भाई बैठे हुए हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये गांव वाले, हमने सुना है कि इनके पास अपनी अमानतें भी रखवाते हैं, क्या ये बात ठीक है? ठीक है, ठीक। और अपने वो जो खेत के कारोबार के खेत में जो हिसाब किताब होता है उसका हिसाब किताब भी इनसे आकर करवाते हैं? हाँ जी, करवाते हैं। माशाल्लाह। तो ये तो मेरे ख्याल में आपके लिए तोहफा है इस गांव के लिए कि लोगों की अमानतें भी रखते हैं, यानी कि ये अपने गांव में लोगों का बैंक है, ठीक है। और उसके बाद उनके जो कारोबार है, उनके हिसाब किताब, जो पानी लगता है खेतों में या खेत में कोई भी हिसाब किताब होता है, कनाल 2 कनाल, एकड़ 2 एकड़, उसका हिसाब यहाँ मोहम्मद यकूब से आके लगवाते हैं। हाँ। ये बात ठीक है? ठीक है जी। तो हम अब फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि मोहम्मद यकूब जो मेरे मामू भी है और अपना जो कलाम है जो भी है उसमें से चंद अशार जो है ना वो इरशाद फरमा दें। जी। ये एक नात के चंद अशार मैं बयान करता हूँ, जो मैडम नूर जहाँ का नगमा है, चंद सजना वे नेड़े नेड़े हुए। जी जी। उसकी तरफ पर मैंने लिखा है, तैबा वाले आ करम कर दो, शाना वाले आ नज़र कर दो, दुखियाँ गरीबा उत्ते रहमतां दी लो, तैबा वाले आ करम कर दो। सुभान अल्लाह।
तेरे सोने रोज़े दा दीदार मंगदे, अली दियां बच्चियां दा प्यार मंगदे, सदका नवासियां दा कासा भर दो, तैबा वालिया करम कर दो। माशाअल्लाह। दूसरा फिक्र है जी, दुखियां यतीमां ते एहसान करदा, मेरे जे गरीबां दा ध्यान करदा, खाली न मोड़ी आका जोली भर दो, तैबा वालिया करम कर दो। तीसरा फिक्र है जी, हशर दे दिन आका याद रखना, असी इस उम्मती दी लाज रखना, सख्ती सवालां दी खत्म कर दो, तैबा वालिया करम कर दो। सुभान अल्लाह, क्या बात। इसका जी मकता है, कर दे नसीब नू अयूब वर्गा, तेरियां है सिफतां यकूब करदा, मेरे भी घराने विच रहमतां दी लोड़, तैबा वालिया करम कर दो। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन, अब एक बंदे में अल्लाह ताला ने क्या क्या गुण रखे हैं, ये हर बंदे में होते हैं, लेकिन कुछ बंदे अपने इस गुण को, इस चीज़ को पहचान लेते हैं और कुछ लोग वो अपने साथ ही लेकर कब्र में चले जाते हैं। आप भी कोशिश करें कि आप मोहम्मद यकूब की तरह आप अपनी ज़िंदगी को बदलें, हिम्मत करें, कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये पैगाम दूसरों को भी दें। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर इसमें कोई आपको बात अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको इजाज़त चाहने से पहले, इससे पहले हम आपको मोहम्मद यकूब साहब का घर दिखाएंगे, इस गांव की गलियां दिखाएंगे और यहाँ की मस्जिद जो है, इनमें जब भी महफिल होती है, जब भी अल्लाह ताला का यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए कुछ लोग कोशिश करते हैं, तो ये बीच में अपना हिस्सा भी डालते हैं और उसमें पेश होते हैं। तो हम आपको इनका घर और ये गाँव का सारी लोकेशन दिखाते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपकी मुलाकात करवाई मोहम्मद यकूब से। ये उनके बेटे हैं जिनका नाम अब्दुल जब्बार है और ये भी वो इटालियन मास्टर का काम करते हैं। इनको ये थोड़ा मसला है, मजदूरी है, इनसे पूछते हैं ये किस वजह से हुई और कब हुई। जी भाई, क्या नाम आपका? अब्दुल जब्बार भाई, आप ये बैसाखी पर खड़े हैं, ये आपको शुरू से या कोई बीच में दरमियान में कोई मसला हुआ था? जब नाश्ता से चलता सर, हम अपने चार पे पकड़ कर, तो उसका ये मसला हुआ था। फास्ट टेका जो होता है वो ख़राब था, वो लगाया गया था, इस वजह से बुखार हुआ, तो एक टांग ख़राब हुई। तो आपने ये टांग ख़राब होने के बावजूद हुनर सीखा और कुछ काम शुरू किया। आप क्या करते हैं? मैं दर्जी का काम करता हूँ इंशाल्लाह। 15 साल से अपनी दुकान है, काफ़ी कामयाब कारोबार जा रहा है माशाल्लाह। तो आपको ये काम किसने सिखाया, किससे सीखा? ये मेरे वालिद ने हमें सिखाया। जी जी। तो आपके वालिद साहब तो माशाल्लाह काफ़ी मेहनती, हमने अभी उनकी सारी रिकॉर्डिंग की है और हम उनका घर दिखाना चाहते तो अचानक आप पे नज़र पड़ गई, तो आपने बताया कि वही काम मैं कर रहा हूँ। आपने अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारी, अपनी हिम्मत से आपका अपना घर अलहदा और शादीशुदा है आप? बिल्कुल, 4 बच्चियाँ हैं मेरी और अपना अलहदा घर इंशाल्लाह अपनी कमाई से बनाया हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है। यानी कि आप अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगते? नहीं, इंशाल्लाह मांगनी भी नहीं चाहिए। आपके जो वालिद हैं उन पर फ़ख्र है, गाँव वालों को भी और आप लोगों को भी फ़ख्र होना चाहिए कि आप जो भी बहन भाई हैं उनको जवान करके अपनी मेहनत से उनको कारोबार सिखला के उनको खुद साल बनाया और अब आप अपने पाँव पे खड़े हैं और अल्लाह ताला ऐसी हिम्मत सबको दे। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मेरे चैनल के व्यूअर्स को? बस ये मेहनत कीजिए, मेहनत जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अल्लाह का शुक्र अल्लाह देता है और मदद भी करता है। इंशाल्लाह जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह उतनी सलाह देता है। माशाल्लाह। आप मोहम्मद यकूब से तो मिले हैं, उनके ये बेटे हैं, इनसे एक बड़े बेटे हैं और बाकी 2 छोटे बेटे हैं। आप जिससे मिलेंगे उनमें यही जज्बा होगा, यही जोश होगा, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं सीखा अल्लाह के सिवा किसी से मांगना और अपनी औलाद को भी यही सिखाया है।
اور میرے چینل کے ویورز اور دیکھنے والے اپنے آپ میں ہمت پیدا کریں. ان کو دیکھیں, انہوں نے ہمت نہیں ہاری.